गलती ना करें जो वो कर चुके हैं। ऐसे लोगों की जिन्होंने स्टार्ट किया था एज एग्जीक्यूटिव्स एंड आर नाउ सक्सेसफुल मैनेजर्स इन देयर डोमेन्स, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यहां आपको मिलेगा वो सही डायरेक्शन जो आपकी करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। तो लेट्स अनलॉक योर पोटेंशियल टुगेदर। अपना कम्युनिटी में ज्वाइन करें और अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सफर शुरू करें। हे दोस्तों, Hi everyone, thank you so much for joining. We'll be starting with the session shortly. We'll be starting in the next 5 minutes. हम अगले 5 मिनट में सेशन शुरू करेंगे. आप थोड़ी देर और वेट कीजिए एंड फिर हम जल्दी इसको स्टार्ट करेंगे. हेलो, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। मुझे अपना ऐप के थ्रू दुबई पोर्ट वर्ल्ड में इंटरनेशनल जॉब मिली है। मुझे अपना ऐप के बारे में फेसबुक से पता चला, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं। मैंने अपना ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाई और जॉब ढूंढना शुरू किया। फाइनली मुझे एक सही इंटरनेशनल जॉब अपना ऐप पर मिली। जॉब लेटर मिलने पर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं 1 साल से अपना ऐप यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल जॉब्स आती हैं और अप्लाई करना बहुत ही ईजी है और इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स देना चाहूँगा। अगर पूरा करना है इंटरनेशनल जॉब का सपना तो डाउनलोड करें अपना। Hi Apna. First of all, I would like to thank you that you are providing us the very nice platform for the jobs. You are not providing only the domestic jobs but also international. That's why we are getting motivated to go abroad. Thank you for it. And one another thing that you are providing us the intimation on the WhatsApp. It is very helpful to us because whenever any HR views our application and proceed about it, then we get intimation about that and we get ready for the interviews. That's why it is very nice platform to us. I would like to thank you again and again. Thank you, Apna. Hey Dipanjan, you're on mute. Okay, sorry so much. So sorry for that. Hi everyone, thank you so much for joining. आप आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ये सेशन हम गौरव के साथ होस्ट करेंगे. वो हमको ये बताएंगे कि हमारी जो जर्नी है, अगर हम फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं. एंड गौरव का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ से एंड ही हिमसेल्फ हैज बीन अ फ्रेश ग्रेजुएट, हैज रिसेंटली स्टार्टेड हिज करियर, सो वील हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम. Gaurav, over to you, man. Why don't you introduce yourself once and let them all know about the session, what they can expect, and what all will be covered here. Sure, Dipanshu. Thank you for the introduction. So I'm really happy to be here today, and it's a great opportunity. So first of all, let me introduce myself. My name is Gaurav, and I am currently employed as an investment research analyst with a wealth management firm. So I'll just give you a little bit background about myself and my journey till now. So I am a hotel management graduate, and from there I worked in the industry for 7 months, and then I transitioned to the IT industry. And in that course of time, I have just built a profound passion for finance. And I was not from commerce background, or I had no prior experience regarding what it is exactly. So what happened, as I got this knack for finance, I delved deeper into the domain, and I saw many certifications which can build you a career in finance. So I thought to pursue my career in CFA. So I gave my exam recently and I cleared it with 90 plus percentile. And why it is important, why am I introducing myself as such, right?
So my journey was not so smooth, right? I was very average during my school days. And when we talk about math and all the numbers, trust me, I literally sucked in all those fields. But one thing I have realized that if you are clear with your life, or you know where you want to be, or you have a passion for something, there is no foundation for it. And also in my examination, I have scored more than 90% in quant section or the math part, right? So I'll just walk you through a presentation, and I'll definitely guide you how to build a career in finance, as well as how to be confident and how to exactly know where you have to be, right? To end up in the right place. So I'll just share my screen, okay? Yeah. Just give me a Gaurav, just interrupting for 1 second, just letting everyone know, guys. अगर आपकी कोई भी सवाल है, अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर हमारा जो चैट बॉक्स है यहाँ पे भी आप अपनी क्वेश्चंस यहाँ पे डाल सकते हैं। सेशन का फॉर्मेट हम पहले गौरव हमें एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ले जाएंगे, एंड सारी चीज़ों के बारे में हमें एक बार बताएंगे। अगर प्रेजेंटेशन के बीच में आपको कोई सवाल पूछना हो, आप अपना हैंड रेज कीजिए या फिर चैट में डालिए, एंड हम सारे क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि सबके डाउट्स हम क्लियर करें। एंड जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये आपके लिए एक वॉक थ्रू रहेगा, ताकि आपको पता चले अगर आपको फाइनेंस में करियर बनाना है तो कैसे आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, कुछ भी सवाल हो आप डेफिनेटली पूछिए, हम चाहेंगे कि आपकी मदद हम इस सेशन के थ्रू कर सके। या ओवर टू यू गौरव मैन। ऑल्सो गौरव, विल यू ऑल्सो बी कंफर्टेबल इन टॉकिंग इन हिंदी इन सम फेजेस, और इज इट नॉट ओके फॉर यू? No, sure. We'll Hindi भी use कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा English भी रहेगा. So I think it will be convenient for everyone of you. Correct. Yeah, we can do it a little bit in English. I think that works best. अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आप चैट में बताइए, और ये भी बताइए कि कौन से लैंग्वेज आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ताकि हम उसी हिसाब से ये सेशन कंटिन्यू कर सके। ओवर टू यू मैन। या प्लीज कंटिन्यू। Yeah. So building a career in finance, what should be or how your journey would look like after your graduation, right? So why do you want to build a career in finance, right? So either you have a great passion for finance, or you could have a FOMO, ये सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना होगा, and I am not missing out on something, or you are just confused that I really don't know where I have to be. So why not let's venture out in the field of finance, or somebody of your family members or your friends जो आपको सजेस्ट किया है कि आप फाइनेंस में करियर परस्यू करो, क्योंकि प्रोस्पेक्ट उसका अच्छा है। और एक जो आप कह सकते हो कि स्टिग्मा है कि पैसा बहुत है फाइनेंस में, तो फाइनेंस में करियर बिल्ड करने से मतलब आप अमीर हो सकते हो, राइट? ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो दिस कुड this could be some of the reasons that you want to build a career in finance. So before moving on, I want all of you to share in the chat box what is your reason to pursue your career in finance. क्योंकि अगर मुझे ये जानने का मौका मिलेगा तो मेरे लिए इजी होगा कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं, राइट? So yeah, I'll just give 1 minute. आप अपने चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, और अगर मतलब आपका टाइप हो जाए तो मैं देख के I'll just respond, okay? Gaurav, I'll keep track of the chats and let you know. In the meantime, अगर किसी को अनम्यूट करके कुछ सवाल पूछना है, आप वो भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर कोई चैट में आप मेंशन करना है, वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ बोलना चाहें तो एक बार हैंड रेज कर लीजिएगा, हम बीच बीच में आपके क्वेश्चंस लेते रहेंगे। Sure, works well. Yeah. So yeah, so do you have any exact niche in your mind, है ना? आपको फाइनेंस में जाना है, लेकिन आपको पता नहीं है आपको फाइनेंस में एग्जैक्टली जाना कहाँ पे, राइट? फाइनेंस का बहुत सब डिविजन्स होता है, और सब उन पर्टिकुलर डिविजन्स और सेक्शंस के लिए डिफरेंट टाइप्स के स्किल सेट्स या नॉलेज रिक्वायर होती है, जिससे आप अपना जॉब रोल पूरे से यू कैन फुलफिल। तो यू हैव एनी निश इन योर माइंड, लाइक आपको पता है ऑलरेडी, या आपको नहीं पता है कहाँ जाना है, या आप जस्ट कंफ्यूज हो, राइट? So Dipanshu, will you be just responding if anybody is typing in the chat box? Yeah, I'll let you know. So far, if we get anything, I'll let you know.
Yeah, just let me know, then I'll move on to the next slide, right? Yeah, so like Prateek has mentioned that, he's looking into a career where he can get into angel investor, being an angel investor. So if you have anything in mind Right. regarding that. Okay. So yeah, Pratik, to answer your question, आपका अगर क्वेश्चन मुझे आंसर करना है तो लिटरल जो नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी वो इसके रिगार्डिंग ही होंगी कि आपको क्या क्या मतलब कोर्सेज बताइए या क्या क्या रोल्स होते हैं। वो सब रोल आपको अगर एंजल इन्वेस्टर्स के डोमेन में, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल में जाना है तो वो कैसे आपको हेल्प कर सकती है, राइट? तो नेक्स्ट स्लाइड्स विल बी पर्टिकुलरली उसके लिए कि आपका आंसर्स और आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। So, what are your career options in finance? या तो आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, या यू वांट टू बिकम अ ऑडिटर, राइट? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, रिस्क मैनेजमेंट में जाना है, आपको वैल्यूएशन एनालिस्ट बनना है। सो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है। जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होती है, कभी आईपीओज आती है, राइट? किसी को अपना बॉन्ड फ्लोट कराना है या पैसा रेस कराना है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक चैनल होती है जो उनको हेल्प करती है इन सब चीजों को करने के लिए। एंड इसके रिगार्डिंग जो रेलिवेंट स्किल सेट्स होगा वो भी मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली सोचिए आप किसी फर्म के लिए काम कर रहे हो और उस फर्म में क्या क्या रिस्क एग्जिस्ट करती है या मार्केट में क्या रिस्क एग्जिस्ट करते हैं और आप उसको मतलब प्रोटेक्ट कैसे करोगे, राइट? अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, अपने फर्म को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, अगर कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स हो गया तो आप उसको प्रेडिक्ट कैसे करोगे और उसके लिए आपको काउंटर मेजर्स क्या लेने होंगे। बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट उसके रिगार्डिंग है। फिर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, तो सोचो कि आपको कोई बिजनेस बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? आपको बिजनेसेस अच्छी लगती है एंड उनका स्टॉक ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट में, एंड यू हैव टू बेसिकली डू अ डीप डाउन एनालिसिस ऑफ दो स्टॉक्स ऑफ दोस बिजनेस, एंड वो करके आपको बताना होता है कि इन्वेस्टर्स के लिए अभी सही टाइम है या वो जो स्टॉक है वो सही वैल्यू में मार्केट में सेल हो रही है कि उसको नहीं खरीदना चाहिए या वहां से उसको सेल करनी चाहिए। ये सब बेसिक चीजें होती है। So you all can also take a snapshot of this screen. So these are basically the roles into the broader domain of finance, है ना? Gaurav, just taking a So pause. I think we have one question. Gaurav, आपका एक क्वेश्चन था, आपने हैंड रेस किया था। हाँ, आप एक बार अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ सर, वर्क क्या रहेगा सर इसमें कंपनी में सर? डिपेंड करता है, मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया, आपका रोल क्या है ना? आप अगर अकाउंटेंट हो, आपको बुक्स देखनी है, ठीक है? आपने क्या कहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज आ रही है, कहाँ पे अकाउंट्स आपका मिल नहीं रहा है, वो देखना है। अगर आप ऑडिटर हो, राइट, आप किसी फर्म में गए हो, उसका ऑडिट कर रहे हो, तो आप उसके फाइनेंशियल्स देखोगे कि उन लोगों के अकाउंटेंट ने उसको सही से बनाया है कि नहीं, या कोई उसमें मिस्टेक्स हुई है ना? या वो लोग कुछ छुपा रहे हैं उसमें से। तो बेसिकली आपको किसके बारे में जानना है, मतलब स्पेसिफिक जॉब किस रोल के? अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है सर। जॉब कहाँ से, मतलब क्या करना पड़ेगा सर इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए सर? गौरव, हम तो बेसिकली आई थिंक जस्ट वन क्लैरिफिकेशन। सो गौरव, इस सेशन में हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि अगर किसी को फाइनेंस में अपना करियर बिल्ड करना है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे वो कर सकते हैं, है ना? तो अगर आप इस बारे में कुछ जानना चाहें तो आप गौरव से पूछिए, वो आपके आंसर करेंगे, एड्रेस करेंगे। हाँ, तो गौरव, आपने जो क्वेश्चन किया कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, राइट? आपको जॉब मिलने से पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप किस में जॉब करोगे, है ना? जी। मतलब फाइनेंस तो मैंने बोल दिया कि फाइनेंस है। अब कल जाके आप किसी कंपनी में या किसी कंपनी ने जॉब के लिए वो किया है, फ्लोट किया है कि मुझे कैंडिडेट्स चाहिए, तो वो मेंशन करती है कि मुझे अकाउंटेंट्स चाहिए, मुझे ऑडिटर चाहिए, या मुझे एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एनालिस्ट चाहिए। तो सोचिए, आपके पास अकाउंट्स का नॉलेज है लेकिन आपके पास वैल्यूएशन का नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल मॉडलिंग का नॉलेज नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप अप्लाई करोगे तो आपका मतलब योर स्किल सेट्स आर नॉट मैचिंग विद दैट पर्टिकुलर जॉब रोल, ठीक है? तो पहला काम आपको जो करना है, आपको पता करना है कि आपको अच्छा क्या लगता है, आपको फाइनेंस में अच्छी मतलब आपका जो पैशन है, आपका जो टिल्ट है वो किसकी तरफ है। ये जी। आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप किसी आगे का स्टेप्स ले सकोगे।
ऐसे कोई ब्रॉडर स्टेप्स नहीं है कि आप फाइनेंस में चले जाओगे और आपको कोई भी जॉब दिया जाएगा, है ना? ओके there's one question from Christopher as well. Christopher, आप please unmute yourself. आप unmute करके एक बार अपना सवाल पूछ सकते हैं. Christopher, आपने हाँ या हेलो हेलो सर यस 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 सर इसमें कौन सा काम मिलेगा सर? सॉरी, हेलो हाँ हाँ बताइए बताइए, कौन सा काम मिलेगा सर? आपको कॉल कौन सा काम करना है फाइनेंस में, बताइए। फाइनेंस में कॉल सेंटर में चाहिए कॉल Christopher, सेंटर में चाहिए, है। ओके। तो देखिए आपके लिए सेल्स, देखिए फाइनेंस में सेल्स होता है, ठीक है। सेल्स में ओके बेसिकली क्या होता है, सोचिए कोई फर्म है जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म हुआ या कोई अकाउंटेंसी फर्म हुआ, तो उसका एक सेल्स डिपार्टमेंट रहता है। तो उनका क्या होता है, वो लोग क्लाइंट से या वो लोग अपने दूसरे डोमेन्स में वो स्प्रेड करती है कि हाँ हमारे कंपनी ये प्रोडक्ट ऑफर कर रही है और इस प्रोडक्ट का ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आप लोगों का काम स्पेसिफिकली ये होगा कि कैसे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करें अपने कंपनीज के लिए। तो अगर आप किसी कॉल रिलेटेड जॉब्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप सेल्स में जा सकते हो। अब आप किसके सेल्स में जाओगे, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको अगर सेल्स में जाना है, बहुत सारे हैं। सोचो कि कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, सोचो कि कोई अपना म्यूचुअल फंड सेल करना चाहता है या कोई अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना चाहता है किसी को, तो आप वैसे डोमेन्स में जा सकते हो। आपको थोड़ा सा डिटेल रिसर्च करना होगा इसके ऊपर कि आपको अच्छा क्या लगता है। सोचो आपको इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज है, या हाँ आपको सोचो कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में थोड़ा नॉलेज है ना। तो हाँ अगर आपको किसी चीज के बारे में थोड़ा फाइनेंस जैसे आप पढ़ रहे हो, आप अभी आप इस मीटिंग में हो, तो आई एम एज्यूमिंग कि आपको नॉलेज है किसी हाँ पर्टिकुलर फील्ड में, फाइनेंस में। तो आप जिस फील्ड में आपका नॉलेज है, आप उस फील्ड में सेल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके सर या तो आपको कैसे जॉब मिलेगी, कहाँ से जॉब मिलेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो मैं पहले आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों को ना क्लैरिटी नहीं होता कि वेयर वी शुड अप्लाई, व्हाट आर दी थिंग्स। तो मैं ये आपको ब्रॉडली कैटेगराइज कर रहा हूँ कि ये सब चीजें होती है। यहाँ पे सेल्स होती है, यहाँ पे एनालिस्ट की जॉब होती है, ठीक है, यहाँ की एडवाइजर्स की जॉब होती है। तो बेस्ड अपॉन दैट आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, है ना। ओके सर करें ओके, I think that's all the दीपांशु questions for now. Yeah, we can continue. Okay. Yeah. ओके। सो आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो अभी देखो, अभी द करेंट जो अभी सिचुएशंस है जॉब मार्केट की या इकोनॉमीज की, पीपल आर अपग्रेडिंग देयर स्किल्स। आपको हायर स्किल सेट्स लगेंगे, राइट। आप ग्रेजुएशन में पहले जैसे होता था, आप 10th पास कर लिए तो इट इज अ ह्यूज डील 30 ईयर्स बैक, ठीक है। फिर जब 12th पास करते थे लोगों को लगता था कि मैंने बहुत बड़ा कुछ कर लिया, राइट। फिर ग्रेजुएशन आ गया, फिर उसके बाद आप सोचो एम कॉम आ गया। फिर अब लोगों को लगता है कि यार एम कॉम से नहीं होगा, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी होगी या मुझे ऐसा कुछ करना होगा जो मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करूं, उसके लिए रिलीवेंट है और जो मेरा एम्प्लॉयर होगा जो मुझे हायर करेगा उसको भी लगेगा कि मेरा इंटरेस्ट है। कोई आपको तभी हायर करेगा जब वो आप में देखेगा कि आपका उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर इंटरेस्ट है। जब आपका इंटरेस्ट होगा तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस आर सम ऑफ द क्वालिफिकेशन जो आप मतलब प्रेफर कर सकते हो, है ना, अपने हिसाब से, अपने जॉब रोल्स के या अपने जो प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से। तो एक आ गया सीए। सीए का 3 लेवल्स होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सबको पता है, राइट। फिर आता है एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। सो व्हाट इज दिस, ये ग्लोबल डिग्री है जिसका अगेन 3 लेवल्स आता है। एंड आई एम एज्यूमिंग कि आप घर जाओगे, आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे। अगर आप रिसर्च करोगे, आप अगर आप मतलब खुद के स्किल्स, खुद के नॉलेज बेस बढ़ाओगे, तो आपके जॉब मिलने का चांसेस भी बहुत हाई हो जाएगा। बहुत लोगों को जॉब इसलिए नहीं मिल पाती, पहला बात तो है कि उन लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता या उन लोगों को सही से पता नहीं होता हमको क्या करना है। तो बेसिकली इस सेशन का ये नहीं है कि आप कहीं पे अप्लाई कर दो, वो आपको आकर जॉब दे देगा। अब वैसे इंसान बनो, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। एक जगह नहीं, बहुत जगह से आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएगी, है ना। तो दिस आर सम ऑफ दी यू नो कोर्सेज। तो एक है सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये 3 लेवल्स होती है। दिस इज ऑल्सो ग्लोबल, ये ग्लोबल डिग्री है एंड इट इज एक्सेप्टेड इन मोर देन 140 प्लस कंट्रीज, राइट। फिर होता है
सो इनका काम क्या होता है? बेसिकली जो ऊपर के दो है, इन लोगों का काम होता है अकाउंटेंसी रिलेटेड, एडवाइजरी रिलेटेड, ऑडिट रिलेटेड, ठीक है। सीएफए का काम क्या होता है? जो सीएफएस होते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन लोगों का काम होता है स्टॉक मार्केट को लेके, बॉन्ड मार्केट को लेके, इंश्योरेंसेस को लेके, पोर्टफोलियो मैनेज करना किसी का, फाइनेंशियल प्लान बनाना किसी का, है ना। तो ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं इन सब चीजों में। फिर आता है आपका एफआरएम। एफआरएम का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। जैसे मैंने रिस्क प्रोफाइल के बारे में आपको बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट का भी एक रोल होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें आप बेसिकली अपने जो फर्म है, फर्म के लिए अपना रिस्क मैनेज करोगे। तो ये जो सर्टिफाइड लोग होते हैं वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं रिस्क मैनेजमेंट पे। फिर आता है आपका, जैसे प्रतीक का क्वेश्चन था, सीएआईए। सीएआईए होता है चार्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। इनका भी 2 लेवल्स होती है, जो 2 लेवल्स आपको क्लियर करनी होती है। सो बेसिकली दे डील विथ हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, रियल एस्टेट और दूसरे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, ये नहीं है, जो इनसे हटके अलग है। इन सब चीजों में ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपको सीएमटी। सीएमटी होता है चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन। इसका भी 3 लेवल्स होती है। तो सीएमटी का जॉब रोल्स क्या होता है? जो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सोचिए कि कोई ट्रेडिंग कर रहा है ना, उसको अभी एल्गोरिदम बनाना है कि एक एल्गो ट्रेडिंग करना है, किसी को हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करना है, या किसी को ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो इन सब का जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सीएमटी वाले होते हैं, ठीक है। देन कम्स एक्चुअरी। सो एक्चुअरी बेसिकली थोड़ा सा मैथ टिल्टेड होते हैं ये लोग। इन लोगों को मैथ अच्छी आती है, फिर स्टैटिस्टिक आता है। तो ये लोग इंश्योरेंस फर्म्स में काम करते हैं, जहां पे ये लोग प्रीमियम्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो उनका क्लाइंट होगा, क्लाइंट का एज क्या है, उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, कितना क्लेम आ सकता है, इसके बेसिस पे उसका प्रीमियम कितना होगा, कितने साल का होगा, ये इन लोगों का काम है। फिर आता है सीएमए, चार्टर्ड मैनेजर सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये भी ग्लोबल है, इंडिया में भी है, यूएस में भी है, यूके में भी है, ठीक है। अब इसका क्या है? जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं किसी कंपनी कॉर्पोरेट में, जो अकाउंटेंट्स होते हैं या कोई एडवाइजरी होता है अकाउंटिंग रिलेटेड, ये इनका जॉब होता है, ठीक है। एंड दिस सर्टिफिकेशंस आर, आप सोचो, चार्टर्ड सर्टिफिकेशंस, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करनी, बट आपको ऐसा कुछ करना है जहां पे आपको इमीडिएट जॉब मिल जाए, एज वेल एज आपका स्किल लेवल भी डेवलप हो, तो उसके लिए है एनआईएसएम एंड एनसीएफएम, ठीक है। एनआईएसएम है सेबी की तरफ से सर्टिफिकेशन दी जाती है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स, एंड एनसीएफएम है जो एनएससी के साइड से आपको सर्टिफिकेशन देती है, ठीक है। तो आई विल आल्सो वॉक यू थ्रू कि कैसे ये होता है। तो इफ वी कम हियर, सी, अगर आप एनआईएसएम टाइप करोगे ना, जो आपका पहला ऑप्शन आएगा, तो ये एनआईएसएम आ जाएगा। देखो एनआईएसएम में अगर आप सर्टिफिकेशंस में जाओगे, अगर आप यहाँ क्लिक करोगे, तो आपको इधर देखोगे सर्टिफिकेशन एग्जाम करके ऑप्शंस आएगा। अगर आप यहाँ जाओगे, क्योंकि मैं ये किस लिए बता रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। सोचिए आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है किसी फर्म के साथ, फाइनेंशियल फर्म के साथ, ठीक है। तो आप नीचे जाओगे, देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का एग्जामिनेशन है। सोचो कि अगर रिसर्च एनालिस्ट आपको बनना है, ठीक है, तो ये देखो ऊपर से आप देखोगे करेंसी डेरिवेटिव्स एग्जामिनेशन 1500 इसका कॉस्ट है, 2 आवर्स की एग्जामिनेशन है, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो यू आर सर्टिफाइड, सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो अभी किसी भी फर्म में जाओगे ना, यू हैव द सर्टिफिकेशन टू लीगली डू द रिसर्च एनालिसिस वर्क। तो उसके भी कुछ कुछ क्लॉजेस होती है। तो अगर ये देखोगे एनआईएसएफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन, म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेशन, अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आप वहां भी कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का एग्जाम है। तो दिस एग्जामिनेशन आर फॉर द पीपल जिनको अभी इमीडिएट फाइनेंस रोल में जाना है, और उनको 3 साल, 2 साल या 1.5 साल का हाई कॉस्ट नहीं करनी है। दे कैन रेफर दिस। व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? जब आप अपना सीवी डालोगे ना, रेज्यूमे डालोगे किसी कंपनी के साथ, किसी भी फाइनेंशियल फर्म के साथ, अगर आपके पास ये सब अपने रेज्यूमे में होगा, आपका चांस उस फर्म में हायर होने का बहुत हाई हो जाता है। क्योंकि जो वो फर्म होगा उसको पता होगा आपके पास नॉलेज है एंड स्किल्स है, दैट्स व्हाई यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम, ठीक है। एंड ये एग्जाम्स बहुत इजी होती है, ठीक है। इसका पीडीएफ भी एनआईएसएम ही प्रोवाइड करेगी वंस यू हैव रजिस्टर्ड। लेट्स मूव ऑन टू एनसीएफएम, जो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से
सर्टिफिकेशन कोर्सेज है। तो इफ आई जस्ट सर्च NCFM courses, I think ओके, आई थिंक आई हैव टू लॉग इन। तो अगर आप यहाँ पे एक अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड बना के अगर इफ यू लॉग इन टू दिस NCFM पोर्टल, यहाँ पे भी सिमिलर जैसे सेबी आपको सर्टिफिकेशन दे रही है, यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानर का, फाइनेंशियल एडवाइजर का, म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट का, ऐसा ऐसा सर्टिफिकेशन। व्हाई इट इज रेलिवेंट? सोचो दो बंदे हैं, ठीक है, वो लोग जा रहे हैं जॉब्स के लिए। अब एक बंदे के रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि he is a SEBI certified research analyst और he is a NSE certified research analyst, और एक है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, किसी कोई रेलिवेंट सर्टिफिकेशंस नहीं है, तो उसका जो चांसेस है और आपका जो चांसेस है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इट्स अ स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन गिवन बाय द नेशनल रेगुलेटरी बॉडीज, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन अपग्रेड योर स्किल्स। सो मूविंग ऑन, ठीक है, या सो दिस वाज अबाउट द सर्टिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन। अगर आपको कोई स्नैपशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, एंड यू कैन आफ्टर दिस सेशन यू कैन रेफर दिस स्लाइड्स, ठीक है। एंड मूविंग ऑन, हार्ड स्किल्स। अब आपको कैसे हार्ड स्किल्स चाहिए? जो सेल्स है, सेल्स वालों के लिए ये हार्ड स्किल्स नहीं चाहिए, बस उनको अगर थोड़ा सा इसका नॉलेज हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपको स्पेसिफिकली एक एनालिस्ट बनना है, या आपको स्पेसिफिकली किसी में स्पेशलाइजेशन करना है और उसी को अपना करियर बनना है, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट हूँ एट द करेंट मोमेंट, राइट। तो मेरा क्या एस्पिरेशन है? one day I'll handle a department where the analysis works are being done, where the securities that we are offering to our clients, ये सब का काम जो हो उसको मैनेज करना। ना अगर आप इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से अगर आप मुझे बोलोगे नहीं आपको ये नहीं करना, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होना है, तो आई डोंट हैव द रिलेवेंट स्किल्स कि सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हो जाओ, ठीक है। और इफ आई आल्सो बिकम द सेल्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आई have other skills which I can use more profoundly than sales jobs, right? तो आपको ऐसे डिफाइन करना है। तो what are the hard skills you need? So basically how to build a career is not about just having a CV जहाँ पे अपने नाम लिख दिया, आप BCom BBA कर लिए and then you are just going on to some companies, because in today's world competition बहुत हाई हो गया है। तो सोचो 10 बंदे हैं, उसमें से सबने कुछ ना कुछ करके रखा है, किसी ने टाइम डेडिकेट किया है अपने वो ठीक है स्किल्स को अपग्रेड किया, और आप फिर आप जाते हो, तो दे विल प्रेफर द पीपल हु हैव द स्किल्स, हु हैव द इंटरेस्ट। स्किल्स मतलब सर्टिफिकेशंस एंड ऑल दिस थिंग्स शोज कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आपको वो लोग जॉब ऑफर करेंगे, बिकॉज दे वांट यू टू स्टे विद देयर फर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, आप जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकोगे। तो व्हाट आर द हार्ड स्किल्स यू कैन डू? फाइनेंशियल मॉडलिंग, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट प्रिपरेशन करना, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं, बिजनेस एनालिसिस कैसे करते हैं, दीज आर द हार्ड स्किल्स, ठीक है। कोई स्पेशलाइजेशन करना है किसी को तो दीज आर सम ऑफ द हार्ड स्किल्स। सो मूविंग ऑन, व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स यू नीड, राइट? Gaurav, just You one have a second. decent- I think Yeah. we might have a question. So, firstly, Pratik, I'll come to your question in just 1 minute. Saurabh, if you have a particular question, you can unmute yourself. Otherwise, I request you to maybe keep your mic off. Okay. Pratik has asked a question, Gaurav, that, if you can give an overview of the salary that a person can expect from these roles. So, Gaurav, can you address that? Yeah, very nice question, Pratik. What is the salary expectation one can expect after graduation, right? सोचो अगर आपने CFA नहीं किया, या आपने अच्छे अच्छे CA नहीं किया, या आपने वैसे कुछ सर्टिफिकेशंस नहीं की, योर स्टार्टिंग सैलरी एज अ फ्रेशर वुड स्टार्ट फ्रॉम समवेयर फ्रॉम 3 लाख पर annum. इट कैन गो अप टू 5.5 और 6 लाख पर annum, ठीक है, इस ब्रैकेट में आपका रहेगा, क्योंकि आपके पास अभी नेसेसरी स्किल्स नहीं है। आइदर यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस, कि आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन यू नो आप उन लोगों को आस्क कर सकोगे कि हाँ आई नीड हाई सैलरी बिकॉज आई कम विद एक्सपीरियंस। बट आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम अ कॉलेज, if you don't have the skills, you cannot ask someone that you need to pay me 6 lakhs or 5 lakhs per year for the job I do, even though you have good skills. But to get into that role, आपको कुछ दिखाना होगा कि yeah you have done this sort of thing. तो coming to Pratik's question, the average salary will vary around 3 lakhs
to 5.5 or 6 lakhs. ठीक है, from the start. Once you gain experience, once you do little bit more certification, once you gain the required skills, then it can go and there is no limit. ठीक है, तो I hope I answered your question, Pratik. Pratik, you can unmute yourself. Yeah, okay. Yeah, he said yes. Yeah, okay. We Yeah. can move on. Yeah. Yeah. So this session, na guys, what I want you to do, I just don't want you to be average. ठीक है, आप मेरे को नहीं चाहिए कि आप लोग एवरेज हो और आप जा रहे हो और आप जॉब के लिए जा रहे हो फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी. बिल्ड अ करियर. आप जब फाइनेंस में हो, बिल्ड अ करियर, क्योंकि आपका पैशन है, आपका थोड़ा टिल्ट है, तो बिल्ड अ करियर. और वो करियर आप तभी बिल्ड कर सकोगे जॉब में जाके नहीं. आपको के ऊपर काम करना होगा. एक अच्छा लाइन है कि आप जो चीज हर दिन के मतलब हर दिन करते हो वो आपका हैबिट बन जाता है और आप भी वही इंसान बन जाते हो. तो सोचो आप कुछ भी करते हो लाइफ में, आप कुछ भी करते हो, सोचो आप जिम जाते हो, राइट. एक टाइम के बाद आप जाओगे बॉडी शो बिल्डिंग शोज में जाओगे, ठीक है, आप डिफरेंट काइंड ऑफ फिटनेस शोज में जाओगे क्योंकि आप वो इंसान बन चुके हो, राइट. यू आर डूइंग एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस बिकॉज यू हैव दैट पैशन और यू हैव. आप फाइनेंस में हो, इट्स नॉट अबाउट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल फिर तो मैं चला जाऊंगा. नो, यू हैव टू बिल्ड अ करियर. ठीक है, और वो करियर आप तभी बना सकते हो जब आप खुद को चेंज करोगे, राइट. तो जैसे मैंने हार्ड स्किल बोल दिया, वो तो सर्टिफिकेशंस की बात होगी, आपने एग्जाम दे दिया. बट आप एज ए पर्सन जब आप किसी को इंटरव्यू दे रहे हो, उसको कैसे कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर. आप जब उसके साथ बात कर रहे हो तो आपको क्या क्या होना चाहिए. एक तो डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल. आपको अब ऐसे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए कि यूके में जैसे लोग इंग्लिश बोलते हैं तो आपको वैसे इंग्लिश बोलना चाहिए, एकदम नहीं. दिस इज अ मिथ. योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स शुड बी डिसेंट. थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए, ठीक है, जैसे आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि बहुत लोगों को हिंदी नहीं आती होंगी, बहुत लोगों की लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, है ना. तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश स्किल्स, हिंदी स्किल्स, ठीक है, ये थोड़ा डेवलप करना है. गुड राइटिंग स्किल्स. राइटिंग स्किल्स क्यों, बहुत सारे रोल्स है जहां पे आपको लिखना होता है या यू हैव टू पुट समथिंग ऑन एक्सेल और यू हैव टू डू सम नोट सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो आपका अगर या आप किसी को सोचो आपके मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने आपको बोला कि एक रिपोर्ट बना के दो पीपीटी में, तो आपके पास अगर राइटिंग स्किल्स अच्छा होगा तो आप उस पीपीटी को बना के दे सकोगे. अब राइटिंग स्किल अच्छा करने के लिए क्या करना है, बहुत इजी चीज है. वी आर नॉट परफेक्ट. मैं कभी परफेक्ट नहीं था. हाउ आई हैव लर्न बाय डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस, है ना. आप डेली बेसिस में अपने आप से बात करो, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश में अपने आप से बात करो, ठीक है. देयर इज नो शाय. आप कोई आगे का बंदा है, आपको डर लग रहा है कि अगर मेरे से गलती हो जाएगी, मेक मिस्टेक्स. अगर आप मिस्टेक करोगे तभी आप सीखोगे. अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे, आप जिसके लिए डर रहे हो कि आप फेल हो जाओगे, ऑलरेडी आप फेल हो चुके हो जब आपने वो डिसीजन ले लिया कि मुझे मिस्टेक्स नहीं करना है ना. तो फाइनेंस इंडस्ट्री ऐसी है, इट्स नॉट अंडर अ फोर वॉल केबिन. आप काम कर रहे हो, घर जा रहे हो, यू हैव टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. You have to talk to your clients, you have to talk to new investors, you have to talk to your management. So these all skills you need to have. Good reading skills, negotiation skills and body language skills. So जैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है, now you are just talking like a robot, right. आप रोबोट जैसे बात कर रहे हो इन एन इंटरव्यू. आपका कोई एम्प्लॉयर है, आप ऐसे बैठ के ऐसे नॉर्मली जनरली बात करो तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. आप जब अपने हाथों से जेस्चर करोगे, अपने आप जब बात करो उसको कन्वे करने के लिए आपका बॉडी लैंग्वेज जो होगा, आपका इमोशंस जो होगा, ठीक है, फेशियल पैटर्न्स जो होगा, दिस मैटर्स अ लॉट. जो हम बात करते हैं 75% जो बात करने का तरीका है वो नॉन वर्बल लैंग्वेजेस में है. मतलब आप बात करके नहीं कम्युनिकेट करते. 75 होता है आपका बॉडी लैंग्वेज, देन 35% आपका होता है कि आप बात करके वो बोल रहे हो, आप वो बता रहे हो लिटरली उन लोगों को, ठीक है. एंड गुड रीडिंग स्किल्स. जब आप फाइनेंस में हो तो आपको नंबर से डील करना होगा, आपको प्रोडक्ट से डील करना होगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़नी पड़ेगी, आपको डिफरेंट चीजें पढ़नी पड़ेगी. तो आपको अगर रीडिंग स्किल्स अच्छा नहीं होगा तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू क्रैक अ जॉब ऑल्सो, ठीक है. तो यू हैव टू रीड. आप जब बोल रहे हो कि मैं किसी कस्टमर से बात करूंगा, ठीक है, आप कस्टमर से आप जो बात करोगे वो किसके ऊपर करोगे. यू आर नॉट टॉकिंग कि आपका फ्लिपकार्ट में बैठ के आप बात नहीं कर रहे हो कि हाँ प्रोडक्ट खराब हो गया तो आप इधर डाल दीजिए, हमारा बंदा आके पिकअप कर लेगा एंड ऑल. नो, यू आर सिटिंग इन अ फाइनेंशियल फर्म. आप उसको कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो एंड इट डील्स विथ मनी. लोगों का पैसा लगा हुआ है.
तो इफ यू डोंट हैव अ गुड रीडिंग स्किल्स, कि आपको रीडिंग स्किल्स नहीं आती, उसको क्या बताना आपको पता ही नहीं है, या उस चीज के बारे में पता नहीं है, इट विल बी हार्मफुल फॉर योर करियर एज वेल एज योर फर्म। तो ये सब चीजें ना आपको एक दिन में नहीं होगा, बट अगर आप इसको मतलब ठान लोगे कि हाँ नेक्स्ट 8 मंथ्स में मुझे ये अचीव करना है, यू कैन क्लियरली बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है, आई यू नो मेरे को इंग्लिश बोलने में बहुत तकलीफ होती थी, आई एम अ बंगाली, सो आई वॉज वेरी प्रिटी बैड इन हिंदी, बट आई हैव डेवलप्ड दिस स्किल्स ओवर टाइम बाय डूइंग इट कंटिन्यूअसली। कोई नहीं होता ना, आप खुद से बात करो, ओवर द टाइम यू विल लर्न हाउ टू बिकम द पर्सन, जो कि कोई और बंदा भी देखे तो दे ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंट कि हाँ ये जो है ही कैन हैंडल दिस स्टफ्स, मेरा भरोसा मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ। सो दैट काइंड ऑफ पर्सन यू हैव टू बिकम, यू नो, टू बिल्ड अ करियर, राइट? Gaurav, just taking मस्ट a brief या pause for a couple of questions. Vikrant, you had raised your hand. Vikrant, आपने सवाल पूछना था, आप एक बार पूछ सकते हैं अपना, आपको अनम्यूट करके। विक्रांत, आपको कुछ सवाल पूछना था? Okay, we can move on to Monica. Monica, if you want to ask something, please unmute yourself. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। मोनिका जी, आपने हैंड रेस कर रखा है अपना, आपको कुछ सवाल पूछना था क्या? Okay, I think while these guys come up with these questions, we can move ahead. अगर आपके कुछ भी सवाल हैं, आप चैट पे पूछ सकते हैं, वरना आप अपनी हैंड रेस कर सकते हैं। हम थोड़ी देर में आपके क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। या गौरव, वी कैन गो अहेड। या Yeah. तो आपको और क्या हैबिट्स चाहिए? ठीक है, आपको नॉलेजेबल बनने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आप सर्टिफिकेशंस नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट यू हैव यू नो यू हैव द इंफॉर्मेशन कि अभी दुनिया में चल कर रहा है ना। आपको न्यूज़पेपर पढ़नी है ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि सोचिए कल कुछ हो गया मार्केट में, लाइक कुछ बड़ा न्यूज आ गया एंड आपको नहीं पता, आप अपने क्लाइंट्स को कैसे बताओगे, अपने बॉस को कैसे बताओगे? सोचो कि आप अपने ऑफिस में हो, किसी को नहीं पता, बट आप एक अकेले बंदे हो जो न्यूज़पेपर फॉलो करता है, जो जियोपॉलिटिकल अफेयर्स फॉलो करता है, ठीक है, जो मतलब इन सब चीजों से हर दिन कुछ ना कुछ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर दिन आप न्यूज़पेपर निकाल के पूरे न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं। आप जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है ना, हर दिन सुबह उठो, आपको जब भी टाइम मिले, टॉप 10 बिजनेस हेडलाइंस, टॉप 10 फाइनेंशियल हेडलाइंस, टॉप 10 इकोनॉमिकल हेडलाइंस, ऐसा गूगल में सर्च करोगे तो आ जाएगा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होगा, आपका एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस का बहुत डोमेन है और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म करियर बनाना है इसमें। ठीक है, तो देखिए, आई एम नॉट फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड की आई वाज इन कॉमर्स एंड ऑल, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव क्लियर्ड गुड एग्जामिनेशन नॉट गेटिंग जॉब। व्हाई? बिकॉज आप एग्जामिनेशन क्लियर कर देते हो एंड ऑल, इट डज नॉट मैटर अ लॉट, बिकॉज आप तो वो मेमोराइज करके एग्जाम में जाके आप यू आर पासिंग द एग्जाम, बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, राइट? आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो हर दिन। तो आप उसको अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे ना, योर रिक्रूटर जो आपके सामने बैठ के आपसे बात करेगा, उसको पता चल जाएगा, क्योंकि ही इज मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एवरी डे, कि हाँ मैं इतने लोगों से मिल रहा हूँ, तो उसको पता चल जाएगा कि आप अपडेट ही नहीं हो, आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब आप जॉब सर्च कर रहे हो। तो जॉब सर्च इज वन डिफरेंट थिंग। बोलते हैं ना कि आप वैसे बंदा बन जाओ तो जॉब ऐसे आ जाएगा, तो यही फंडा है कि आप अभी जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन आप वैसे बन जाओगे ना, आपको 5 6 7 8 9 जगह से जॉब आ जाएगी। ठीक है, तो आपको वैसा बनना है, और कैसे आप मतलब आपको कैसे विजिबिलिटी बढ़ाना है अपना, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग, जियोपॉलिटिकल अफेयर्स, रीडिंग बुक्स, फाइनेंशियल और रिलेवेंट वंस। आप फाइनेंस रिलेटेड बुक्स पढ़ो, बहुत सारे बुक्स हैं, मैं बाद में रिकमेंडेशन भी दूंगा, जो जो बुक मैंने पढ़ी है मेरे को अच्छा लगा है सबसे। प्रैक्टिसिंग योर ट्रेड स्किल, अगर आपको सेल्स में आना है, हर दिन प्रैक्टिस करो, कैसे बात किया जाता है, कैसे मैं बात करूं, मेरा बात का सही है कि नहीं, उसको रिकॉर्ड करो। अगर मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ठीक है, अगर मैं एक स्टॉक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो उस स्टॉक के बारे में रिसर्च करो और देखो कि आपने जो प्रेडिक्ट किया है और जो वो बिजनेस कर रहे हैं उसको मैच हो रहा है कि नहीं। अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल मॉडल आनी चाहिए, तो आप देखो, अलग अलग केस स्टडीज लो, अलग अलग पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज लो, एंड उसके एनुअल रिपोर्ट्स खोलो। एनुअल रिपोर्ट्स खोल के देखो आप खुद से फाइनेंशियल मॉडल बना पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट। पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स बिकॉज वो लोग जाके वहां पे ना ऐसे हो जाते हैं कि अभी मैं क्या बोलूंगा, आई एम वेरी नर्वस, माई हैंड्स आर शेकिंग, माई लेग्स आर शेकिंग। व्हाई?
बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन आवर सेल्फ, कि हमको लगता है मैंने तो पूरा काम नहीं किया, मुझे और करना चाहिए था, मैं अभी इंटरव्यू में बैठा हूँ, मुझे थोड़ा और पढ़ लेना चाहिए था। तो ऐसा फीलिंग्स आना ही नहीं चाहिए। आप ऐसे करो कि ये आपका हर दिन का रिचुअल बन गया है, तो यू आर बेटर ऑफ, ठीक है। और आपका जो पैकेज है ना सैलरी का, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच स्किलफुल यू आर, ठीक है। तो मूविंग ऑन, नाउ मैं आपसे कुछ टूल्स एंड किट्स शेयर करूंगा, हाउ टू बिल्ड योर ओन सिस्टम, ठीक है। ये सब तो बात करने की बातें हो गई कि आपको ये करना है, आपको वो करना है। एक्चुअली आप कहाँ से ये सब चीजें करोगे, है ना, कहाँ से आपको मिलेगा ये सब चीजें। तो दिस सेकेंड पार्ट इज बेस्ड अपॉन दैट। न्यूज़पेपर, देखो, देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, बट दिस 4 न्यूज़पेपर्स, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस एंड बिजनेस स्टैंडर्ड्स, दिस 4 आर द न्यूज़पेपर्स जो हर दिन कोई कुछ, सोचो पेटीएम का जो अभी रिसेंटली हुआ था कि आरबीआई का वो इशू आ गया, ईडी का इशू आ गया, फिर पेटीएम पेमेंट बैंक का वो ट्रांजैक्शन बंद कर दिया, आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। इफ यू रीड न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस, इट्स नॉट लाइक कि अब आज न्यूज़पेपर पढ़ लिया, पेटीएम के बारे में जान लिया, दैट्स इट। नो, आप शुरू से लेकर लास्ट तक जान पाओगे। जैसे अगर मैं लास्ट 1.5 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो जो डेवलपमेंट्स लास्ट 6 मंथ से हो चुका है, अभी भी हो रहा है, आई हैव द होल ट्रैक ऑफ दोस इवेंट्स, कि तब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, किस चीज ने उसको स्टार्ट किया था, अभी वो कहाँ पे है, फ्यूचर में वो कहाँ जाएगी। सो अगेन दिस थिंग्स विल गिव यू एनालिटिकल स्किल्स। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू 4 न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स बहुत लोगों को पढ़ने में बहुत हार्ड लगती है, मेरा फेवरेट है, लेकिन मेरे को भी बहुत हार्ड लगती थी, बिकॉज उसका जो वर्ड्स है बहुत हार्ड है, ठीक है। लेकिन दैट इज द फन। अगर वो वर्ड्स लेके आप सर्च करोगे, तो आप धीरे धीरे अपना वोकेबुलरी स्किल्स भी बढ़ाओगे, ठीक है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। एट द सेम टाइम, जब आप, बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी, या वो ठीक से बात नहीं कर पाता था, या बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था, देन ही रेड न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस एंड देन हिज कम्युनिकेशन हैज इम्प्रूव्ड, द वर्ड्स ही इज यूजिंग हैव इम्प्रूव्ड significantly. तो why these things happens because you have to put effort. अगर आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे ना, अगर आप डिप्रेशन में चले जाओगे, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है एंड nobody is seeing my resume, मैंने 400 जगह अप्लाई कर दिया है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, these things are only because you are not confident enough, है ना। your resume is not reflecting that who you really are. To become that person, you have to prepare yourself, upgrade your skills, right? नाउ कम्स फाइनेंशियल वेबसाइट्स। ये तो न्यूज़पेपर हो गया। आपको किसी स्टॉक्स के बारे में जानना है, या आपको किसी बिजनेस के बारे में जानना है, या कोई न्यूज आई है, या आपको यूएस के किसी कंपनी के बारे में जानना है, तो दिस आर सम ऑफ दी पोर्टल्स। तो फर्स्ट वन इज मनी कंट्रोल, ठीक है। अ लॉट ऑफ यू हैव हर्ड मनी कंट्रोल में आपको बहुत डेटा मिल जाएगा। देन आर द स्क्रीनर। अगर इंडियन जितने भी लिस्टेड कंपनीज है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड होती है, अगर आपको उसके बारे में जानना है, एनालिसिस करना है, उसका बैलेंस शीट देखना है, उसका एनुअल रिपोर्ट देखना है, उसका वैल्यूएशन देखनी है, तो यू कैन प्रेफर द स्क्रीनर। देन कम्स सिंपली वर्ल्ड स्ट्रीट। ये एक यूएस का, यूएस जितने भी यूएस कंपनी है एंड इंडियन कंपनी है, उसका डेटाबेस होती है इसके अंदर। तो अगर आपको टेस्ला के बारे में जानना है, या फेसबुक के बारे में जानना है, ठीक है, आपको इन्वेस्ट करनी है, तो यू कैन रेफर दिस। फिर आता है आपका ट्रेंड लाइन, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ वेबसाइट्स। देन कम याहू फाइनेंस। अगर आपको इंटरेस्ट रेट्स के बारे में जानना है, अगेन किसी कंपनी के बारे में जानना है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ स्टफ्स, यू कैन रेफर दिस। बहुत लोगों को ना ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं जाना कहाँ है, मेरे को तो ये करना है, लेकिन मुझे पता नहीं जाना कहाँ है, राइट। तो यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन डू योर रिसर्च। मैं आपको जितना भी चीजें दिखा रहा हूँ, आई एम एज्यूमिंग कि आप घर जाओगे इस सेशन के बाद, आप बैठोगे, आप थोड़ा रिसर्च करोगे, आप अपना जो आपको एग्जैक्टली जहां जाना है उसको आइडेंटिफाई करोगे, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसके लिए रेलिवेंट जो चीजें चाहिए वो करना चालू करोगे, है ना। या सो दीपांशु, एनी मोर क्वेश्चन येट? Yeah, I'll just ask the crowd one. So, Yeah. अगी आपके पास कोई और सवाल है जो आप पूछना चाहोगे इस चीज़ के बारे में, अपनी स्किल सेट ग्रो करने के बारे में, या फिर करियर रिलेटेड अगर कोई भी आपके सवाल हो, आप एक बार पूछ सकते हैं। आप चाहे तो चैट में भी लिख सकते हैं, या फिर अपने आप को अनम्यूट करके भी अपने सवाल एक बार पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? आपका अगर कोई भी सवाल हो, आप ये हेजिटेट मत कीजिए कि ये सवाल कैसा लगेगा। यहाँ पे हम लोग सभी सीखने आए हैं, तो इस चीज़ का आपको कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। अगर आप कुछ भी जानना चाहो कि कैसे आपकी करियर ग्रोथ में हेल्प हो सके, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो चैट में भी एक बार शेयर कर सकते हैं।
किसी को कुछ भी पूछना है? ओके, रवि हैज आस्क्ड कि उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता. एनी टिप्स दैट ही कैन डू टू इम्प्रूव दैट? श्योर. सो रवि, व्हाट हैपेंस ना, इंग्लिश इज नॉट अबाउट ग्रामर. आपको ग्रामर नहीं आता, ग्रामर मेरे को भी नहीं आता यार, ठीक है. ग्रामर मेरे को भी नहीं आता, बट आई कैन स्पीक इन फ्लुएंट इंग्लिश. अब ये कैसे किया जाए, है ना रवि? इसको करने का कुछ तरीका है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ना जो करो, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो. ऑफ कोर्स आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इनिशियली. आप उस वर्ड्स को ना सर्च करो इंटरनेट में कि इस वर्ड का मतलब क्या है. कि आप डायरी लो, उस डायरी में उसको लिखो, इस वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है. दूसरा चीज जो है, आप इंग्लिश के जो मूवीज आती है या इंग्लिश का जो पॉडकास्ट आता है यूट्यूब में, वो आप सुनो. वो आप कंटिन्यूअसली सुनो. आप ऐसा मत करो कि आपको उसको जानना है कि वो क्या बोल रहा है, आपको ऐसा नहीं. उसको आप बार बार जब सुनोगे ना, आपका अंदर ऑलरेडी एक मतलब वो हो जाएगा. मैंने क्या बोला था कि 75 ऑफ द कम्युनिकेशन इज बॉडी लैंग्वेज. तो कोई बंदा अगर कुछ बोल रहा है ना इंग्लिश में, ही हैव अ इंटेंट कि वो ये बताना चाह रहा है, ठीक है. तो आपको ओवर द टाइम अगर आप कंटिन्यूअसली इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश पॉडकास्ट देखोगे, आपको वो थोड़ा सा एसेंस आ जाएगा. न्यूज़पेपर हो गया, ये हो गया. आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है, ठीक है. देखो, द चीज क्या है ना, बहुत लोगों को बहुत चीजें इसलिए नहीं आती क्योंकि वो लोग डरते हैं. मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को डर लग रहा है. अगर मैं बुक लेके बैठा, मेरे को और डर लगेगा कि अभी तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ. फिर 6 घंटे बाद मेरा सब मोटिवेशन चला जाएगा और बुक भी बंद हो जाएगा, एंड देन आई. तो मैं जब सीएफए के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो फाइनेंस मेरे को बहुत अच्छा लगता था, राइट. लेकिन मेरा कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, होटल मैनेजमेंट किया है. फाइनेंस क्या ही चीज है. और अभी ऐसा नहीं है कि आप आके ये 10th 11th 12th का बुक पढ़ रहे हो. आप एक चार्टर्ड कोर्स परस्यू कर रहे हो डायरेक्टली आके, जहाँ पे आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस है ही नहीं, है ना. तो आप कैसे करोगे? आप वो उसको ऐसे ही कर सकते हो. आपको जब अच्छा नहीं लगेगा ना उसको करने में, तब भी बैठ के आपको वो करना है. अगर सोचो आपको बोरिंग लग रहा है, आप उठोगे नहीं, आप बैठ के उसको करोगे, ठीक है. फिर आप लिखोगे, कॉपी लोगे, कॉपी में लिखोगे इंग्लिश में. सोचो कि आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है. अब न्यूज़पेपर में आपको सोचो 80% ऑफ द वर्ड्स आपको नहीं आया, उस वर्ड्स के मतलब निकाले आपने. फिर उसको जोड़े. आप 4 लाइन पढ़ो, ठीक है. आपको पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, जो भी आप पढ़ो 4 लाइन पढ़ो. उस 4 लाइन में क्या बोला है उसको उसको समझो, ठीक है. फिर जो चीज करो, आप खुद से बात करो. कि हे रवि, today evening I want to go out, I want to have ice cream, I want to see my friends, we'll go to a movie. ठीक है. ऐसे खुद से बात करो, ठीक है. आप खुद से इंग्लिश में बात करो. आप टूटे फूटे इंग्लिश में बात करो. अगर आपने ये कंटिन्यू किया ना, क्योंकि मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है. व्हेन आई वाज डूइंग माय होटल मैनेजमेंट, तो मेरा एक दोस्त था. उसको ना इंग्लिश एकदम नहीं आता था. और माय कॉलेज वाज लाइक, वहाँ पे आपको इंग्लिश आनी होगी, ठीक है, बिकॉज यू आर वर्किंग 5 स्टार होटल्स, एंड आप बात नहीं कर पाओगे, राइट. तो व्हाट दैट गाइड डिड, उसने ना न्यूज़पेपर मंगवाना चालू किया. एंड हम कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो बैठ के ना घर में न्यूज़पेपर पढ़ता था. एंड यू वोंट बिलीव रवि, 6 महीने बाद उस बंदे को जो जॉब लगा, वो सबसे अच्छा वाला जॉब था. और उस बंदे को जो इंग्लिश आता था वो सबसे अच्छा था. उसको ग्रामर नहीं पता था, वो इंग्लिश का मतलब एक सेंटेंस नहीं बोल सकता था. तो हम कुछ सीख के नहीं आते, ठीक है. जब हम बच्चे थे या अभी हम कुछ सीख के नहीं आते. अगर सोचो अभी अभी मुझे कुछ सीखना होगा, सोचो मुझे सिलाई करना सीखना होगा, मुझे नहीं आएगा, राइट. मैं पहले करूंगा, उल्टा सीधा हो जाएगा, करूंगा ऐसे. 8 महीने जाएगा, 9 महीने जाएगा, देखोगे कि मैं वही हो जाऊंगा. आप जो हर दिन करते हो, आप वही इंसान बन जाते हो, है ना. तो आप इंग्लिश की न्यूज पढ़ा करो, इंग्लिश पॉडकास्ट सुना करो, मूवीज देखा करो, इंग्लिश की गाने सुना करो, है ना. आप अपने चारों तरफ ना एक एनवायरनमेंट बनाओ, जहाँ पे आप ऐसे एक एनवायरनमेंट में हो, आप वही सुने जा रहे हो, ठीक है. आप अपना जो दोस्त है जिनको इंग्लिश आती है, उनसे बातें करो फोन में. बोलो कि मुझे तुमसे इंग्लिश में बातें करनी है. वो हंसेंगे, तुम उल्टा सीधा बोलोगे. सुनो, थोड़ा सा अगर तुम इंसल्ट भी ले लोगे ना, या थोड़ा सा तुम अगर फेल भी हो जाओगे ना, बाद में जाके तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना. वो जो ले लोगे ना, और जिसने वो नहीं किया ना, वो ऐसे ही फेल हो जाए. तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, है ना रवि. रवि, अगर और कुछ आपको जानना है आप बोल सकते हैं, भले ही आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है. हाँ हाँ. हाँ. Okay, Gaurav, I think we can go ahead. While if Ravi has anything else, he can maybe mention in the chat. ओके ओके. Yeah. तो नेक्स्ट थिंग्स
कि आपको सीवी में क्या दिखाना है। आप बहुत लोगों को जॉब डायरेक्ट नहीं मिलती है ना, बहुत लोगों को जॉब डायरेक्ट नहीं मिलती। सब कोई बोलता है कि हमको फ्रेशर्स नहीं चाहिए, हमको थोड़ा एक्सपीरियंस वाले चाहिए, है ना। ये एक इंडस्ट्री में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में नॉर्म्स है कि मुझे वो मतलब एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, है ना। तो ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस ले सकोगे, जहाँ पे आपका ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगा और आपका रिलीवेंस वो भी हो जाएगा, ठीक है, आपका इंटर्नशिप्स भी हो जाएंगी, ठीक है। एक तो है गवर्नमेंट इंटर्नशिप, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स के बारे में थोड़ा सर्च करोगे, नीति आयोग में इंटर्नशिप्स होता है, ठीक है। नीति आयोग में जो पॉलिसीज बनाते हैं गवर्नमेंट अलग अलग, तो आप उसके इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट होती है, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जाके अपने फायदे के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च करोगे। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आपको जाना कहाँ पे, ठीक है। MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। आप वहां पे जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। और बेसिकली आई थिंक ये इंटर्नशिप 4 महीने का होता है, जहाँ पे आपको दिल्ली में जाना होगा एंड दिल्ली में जाके आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज में अलॉट कर देंगे और वहां जाके आप काम करोगे। इट इज वेरी एक्साइटिंग, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री, और ये ना बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे, इसके बारे में थोड़ा जाके आप यूट्यूब में सर्च करो। चलो, आपको गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स नहीं मिला, ठीक है। अभी आप क्या करोगे? आपके सीवी में सिर्फ बीकॉम है, लेकिन आप जाना चाहते हो रिसर्च में, आप जाना चाहते हो सेल्स में, आप जाना चाहते हो अलग अलग चीजों में, बट आपको इंटर्नशिप ही नहीं मिल रहा। आप बहुत जगह अप्लाई भी कर रहे हो, इंटर्नशिप नहीं मिल रहा। तो फोरज बोल के एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इफ आई शो यू, सो अगर आप फोरज टाइप करोगे ना, फोरज फोरज करके टाइप करोगे, तो नीचे एक आपका ऐसा वेबसाइट आएगा, ऐसे ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। ऐसा एक लोगो होगा। अगर क्लिक करोगे ना, वो दिखाता हो कि हाउ एक्साइटिंग दिस वेबसाइट इज, है ना। तो अगर आप इस वेबसाइट में आओगे, ठीक है, सी एक्सप्लोर आवर फ्री जॉब सिमुलेशंस एंड ऑल। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। सोचिए आप गोल्डमैन सैक्स से इंटर्नशिप करना चाहते हैं, लेकिन मतलब आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन तो आप इस वेबसाइट में आके गोल्डमैन सैक्स के साथ इंटर्नशिप कर पाओगे आप। और उस गोल्डमैन सैक्स में आप जिस पोजीशंस के लिए इंटर्नशिप्स कर रहे हो, उसमें एक दिन में क्या क्या चीजें होती है, अगर आप एक एनालिस्ट हो, गोल्डमैन सैक्स में बैठे हुए हो, आपको क्या क्या काम करना होगा, वो ऐसे 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 लेवल्स होंगे, 2 लेवल्स 3 लेवल्स, ठीक है। वो आपको सिखाएंगे कि इसको कैसे करते हैं। एंड देन वो आपका एक टेस्ट लेंगे। वो टेस्ट सबमिट करने के बाद, ऐसे आप जब लेवल्स क्लियर करोगे, आपको लास्ट में जब फिनिश हो जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा गोल्डमैन सैक्स से या मॉर्गन स्टैनली से। तो कैसे मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप आओगे इस वेबसाइट्स में, एक्सप्लोर में जाओगे, जाके व्यू जॉब सिमुलेशंस में जाओगे, है ना। तो अगर आप व्यू जॉब सिमुलेशंस में गए हैं आप, तो देखो, एक्सप्लोर फॉर जॉब सिमुलेशंस, डिस्कवर जॉब सिमुलेशंस फॉर यू, ठीक है। आप इधर देखो, फिल्टर्स है, देखो, आई वॉज टॉकिंग अबाउट JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। अगर आप इसको कंप्लीट करते हो, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड देखो इसका कंप्लीट करने का सिर्फ 3 से 4 घंटा। तो अगर 3 से 4 घंटा आप नहीं भी दे सकते हो, तो सोचो कि आपने एक लेवल क्लियर कर लिया, आप कल उठ के दूसरा कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, आपको हर एक सेशन में 1 या 1.5 घंटा ही देना होगा, ठीक है। ऐसे करके ना आप 2 3 4 दिन में भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होगा, JP मॉर्गन खुद के वहां से आपको एक सर्टिफिकेशन देगा कि इस बंदे ने मेरे साथ इंटर्नशिप किया है वर्चुअली, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिबिलिटी बहुत हाई कर देता है अपने रेज्यूमेस में। तो सोचो कि आपको कहाँ पे जाना है, सोचो कि आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना है, ठीक है। अब देखो नीचे जो जो आएगा, ये देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड सब जॉब्स आ गए। मार्केटिंग सेल्स एंड ट्रेडिंग, सिटी बैंक, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिसर्च, JP मॉर्गन। कॉमर्शियल बैंकिंग, JP मॉर्गन। तो सोचो एक वी आर गोइंग इनटू मार्केटिंग सेल्स एंड ट्रेडिंग, ठीक है, इन सिटी। सी complete this work that simulates life on job 6 to 7 hours and self placed, ठीक है। और इस साइट का ऐसा है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई हैव नॉट सीन, बट अगर उन लोगों को आपका अपने जो, वो लोग बेसिकली आपको PPT बनाने के लिए बोलेंगे, वर्ड बनाने के लिए बोलेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोलेंगे, या ऑडियो में कुछ बोलने के लिए बोलेंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ द आपका इंटर्नशिप। अगर उन लोगों को आपको बहुत अच्छा लग गया, या आप JP मॉर्गन में जाके अप्लाई कर रहे हो, और अगर आपके रेज्यूमेस में ऐसा होगा, या सिटी बैंक में आप अप्लाई करो और सिटी बैंक का ही आपने इंटर्नशिप करके रखा है, तो इट गिव्स यू दैट बूस्ट, ठीक है। सो यू कैन कम हियर एंड सी
यहाँ पे वो लोग बोल देंगे कि हाउ टू स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स, एंड देन यू कैन सी task 1 is this intermediate, and then you can start your task 1 by clicking on this task 2, task 3. ठीक है, this is how you can do virtual internships, right? Then yeah, so so these things are great way to boost your CV, to build a career in finance. And ऐसा नहीं होगा कि आपको कि somebody is coming and putting fingers on yourself कि आपके पास experience नहीं है, आप freshers हो, आपको हम क्यों लेंगे. You can tell, I have this relevant certifications I have done, I have these internships I have done, now I have come to get a job with you, along with आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो and all sorts of things जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. दैट इज हाउ यू कैन बिकम अ फुल ह्यूमन बीइंग, है ना. आपको सब वैसे ओवरऑल वो मिल जाएगा बूस्ट. अप्लाइंग थ्रू रेफरल्स और जॉब पोर्टल्स, तो देयर आर डिफरेंट जॉब पोर्टल्स, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा. सो अगर आपका कोई रेफरल्स है, सोचो आपका कोई भैया है या फ्रेंड है किसी कंपनी में जॉब करता है, तो यू कैन आस्क मुझे रेफर कर दो. ठीक है, आपका कोई भैया है तो मुझे रेफर कर दो, या आपका भैया या कोई नहीं है, या आप किसी सोशल मीडिया साइट्स पे हो, या आप लिंक्डइन में हो, आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आप उससे रेफरल्स मांग सकते हो. अब एक ड्रॉबैक है, अगर आप लिंक्डइन में जाकर डायरेक्ट किसी से रेफरल मांग लोगे जो आपको पहचानता भी नहीं है, दैट इज अ वेरी बैड थिंग. फर्स्ट मेक कनेक्शन, उसको पूछो हाउ आर यू, आई एम वेरी पैशनेट, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हो गया, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा उसके साथ बॉन्ड बिल्ड करो, एंड देन आस्क फॉर रेफरेंस. जब आप तब वो करके आप रेफरेंस मांगोगे, इट विल जेन्युइनली यू नो गेट यू इनटू सच काइंड ऑफ रोल्स और जॉब्स, है ना. देन सो व्हाई दिस इज अगेन फाइनेंस हार्ड स्किल्स. किसी को अगर फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखना है, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रमोशन और नॉट एनी काइंड ऑफ थिंग. दिस इज जस्ट आई बिलीव कि सबसे कम कॉस्ट में या जीरो कॉस्ट में आप इन सब चीजों को सीख सकते हो, एंड उसके बाद आपको अगर पेड कोर्स लेना है, दैट इज अपॉन यू. ठीक है, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर किसको सीखना है, तो जेब्रा लर्निंग की हैंडबुक आती है. ठीक है, IT will cost you around 1500. तो आई फाउंड दैट बुक टू बी वेरी इफेक्टिव. अगर कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्सेज का प्राइस है 30,000, 40,000, 50,000. ठीक है, अगर आपको वही मतलब सेम चीज 1500 रुपए में मिल रहा है, तो यू कैन ट्राई इट आउट, बिकॉज इससे आपका स्किल बहुत बूस्ट होगा, क्योंकि आप किसी इंटरव्यू में जाओगे, आपको असाइनमेंट्स मिलेगी, and to complete those assignments you need to have these skills, and these things will help you. Gridline financial modeling, this is also a financial modeling जो आपको गूगल में अगर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, and this is absolutely free, and this is also 30-40,000 लेवल वाला ही क्वालिटी का है. ठीक है, नाउ इक्विटी रिसर्च, किसी को इक्विटी रिसर्च में जाना है, तो ग्लोबल कॉन्सिलियंट रिसर्च करके यूट्यूब में पेज है, वहां पे वो फ्री इक्विटी रिसर्च, बिजनेस वैल्यूएशन, फाइनेंशियल एनालिसिस सिखाता है. तो फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन रेफर दिस. किसी को कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में जानना है, किसी को वैल्यूएशंस के बारे में जानना है, तो यू कैन गो टू दिस यूट्यूब पेज. अश्वथ दामोदरन, ही इज अ प्रोफेसर विथ न्यूयॉर्क स्टर्न यूनिवर्सिटी, और इनका लाइक ही इज अ लेजेंड. अगर आप मतलब ये भी फ्री में यूट्यूब में सबको टीच करता है, एंड ही हैव ओन प्लेलिस्ट. तो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस का बुक्स नहीं खरीदना है, आपको जानना है कि चीज क्या है, वैल्यूएशंस कैसे की जाती है, तो यू कैन रेफर ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अभी तक किसी को कोई सवाल है इसके बारे में, लाइक किसी टूल के बारे में या फिर जॉब इंटर्नशिप्स के रिगार्डिंग कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे? Nothing so far, Gaurav. Gaurav, I think just giving a small time check. We are nearing the 1 hour mark, so maybe we can move towards whatever more Yeah. information you have, and then we'll have a little bit of time for questions as well from the crowd if there's anything towards the end. Sure. So Yeah. these are the most important things. So I'll not take a lot of time. So you guys, you can take a snapshot of these things. आप लोग जैसे रेज्यूमे बनाते हो ना फाइनेंस रोल्स के लिए, वहाँ पे आपका फोटो लगा हुआ रहता है, और क्या क्या डिजाइन बना के रखते हो कि ये डिजाइन बन जाएगा एंड ऑल. अब आप लोग देख के बोलोगे ये कैसा है. ट्रस्ट मी, बहुत लोगों का रेज्यूमे मैंने देखा है 3 पेजेस का रेज्यूमे होता है. ठीक है, आपको आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे. किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वो बैठ के 3 पेजेस पढ़े, जहाँ पे उन लोगों को सोचो कि 200 से 300 कैंडिडेट्स का रेज्यूमे स्क्रीन करना है. ठीक है, तो
ऐसे आप रिज्यूमे बनाओ जो एक पेज में आए, क्योंकि आप अगर मेरा रिज्यूमे एक पेज में आ सकता है तो आपका रिज्यूमे भी एक पेज में आ सकता है, ठीक है। बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्क प्रीवियसली विद 2 कंपनीज, ठीक है। उसके बाद मैंने अलग अलग सर्टिफिकेशंस किया एंड व्हाट नॉट, बट स्टिल माय रिज्यूमे इज अंडर वन पेज। इफ माय रिज्यूमे कैन बी अंडर वन पेज, आपका भी रिज्यूमे एक पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि फर्स्ट योर नेम शुड बी देयर, आपका नीचे एड्रेस डाल दो, आप किसके लिए कर रहे हो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट या इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, फिर आप लिखो कि आपका क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, आपका क्या क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपने क्या क्या सर्टिफिकेशंस करके रखी है। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता तो ये सब ना आपको कैनवा में मिल जाएगा। कैनवा करके एक वेबसाइट है, CANVA, ठीक है, कैनवा। कैनवा में आके जाओगे, अगर आप लिखोगे फाइनेंशियल फाइनेंस रिज्यूमे, आपको वहां से मिल जाएगा टेम्पलेट। आप टेम्पलेट में एडिट करके अपना खुद का इंफॉर्मेशन डाल के, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिज्यूमे में है, डू नॉट राइट कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने 12 में पूरे स्कूल को लीड किया था, ऐसा नहीं। नंबर्स डालना, नंबर्स कि अच्छा, अगर मैंने किसी किसी हाउस या किसी चीज को लीड किया था, टीम को, उस टीम का रिजल्ट्स क्या था, वो फर्स्ट पोजीशन में आई, सेकंड पोजीशन में आई, थर्ड पोजीशन में आई, या मैंने स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया था, तो अगर हिस्सा लिया था तो उसके लिए जो मतलब जो कचरा है एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आपने ये मूवमेंट चलाई है, तो इनिशियल जब आपने ये नहीं किया और उसके बाद कितना डिफरेंस आया, लाइक 60% रिडक्शन इन वेस्ट, 40% रिडक्शन इन वेस्ट। तो ऑलवेज पुट नंबर्स। सी अगर आप ऐसे देखोगे ना, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो you have to see, without putting numbers ना, your resume is not effective. एंड एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ऐसे ऐसे वर्ड्स डालोगे, सोचो आपको किसी जॉब के लिए करना है, तो जॉब का डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उस डिस्क्रिप्शन में एनालिस्ट चाहिए, उसको एक्सेल आना चाहिए, उसको पावर पॉइंट आना चाहिए, तो जो जो भी आना चाहिए उसके हिसाब से अपने रिज्यूमे को लिखो, और उसी उसी वर्ड्स को यूज करो जो जो वर्ड्स उन्होंने यूज किया है। तो इससे क्या होगा, वो एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं बड़े बड़े कंपनीज, जहाँ पे रिज्यूमे स्क्रीन होके फिर फाइनल HR के पास जाती है। तो वहां पे ना आधा से ज्यादा रिज्यूमे स्क्रीन आउट हो जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा ATS के बारे में यूट्यूब में सर्च करोगे, या फाइनेंस रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, नंबर्स कैसे डालने, आपको मिल जाएगा, और आप ऐसे करोगे तो अगेन इट विल गिव अ significant boost for you to get screened in. So yeah, so one second. Yeah. I don't know. Once again. One second, my PPT is not working. Yeah. So yeah, let's move on. So what are the websites you can find job on? You can find job on LinkedIn. ठीक है, LinkedIn में आप जॉब सेक्शन होता है, जॉब सेक्शन में आके फिल्टर्स होती है, जहाँ पे एक सिटी का नाम डाल दोगे, आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करो डाल दोगे, तो पूरा उसका लिस्ट आ जाएगा। अपना है, अपना जो लाइक अपना पे मेरा भी प्रोफाइल है, मेरे को जॉब रिकमेंडेशन आते हैं, इट्स वेरी गुड। उसमें ना अपना मतलब मैच भी कर देता है प्रोफाइल। फिर नौकरी आता है, फिर इंडीड आता है। अपना सिर्फ लिंक्डइन में मत डालो या अपना में मत डालो, नौकरी में आप सब जगह डालो अपना, ठीक है। अपना रिज्यूमे जितने जगह डालोगे उतना आपका वो हो जाएगा, गिवन दैट आपका रिज्यूमे ठीक ठाक है। अगर आपका रिज्यूमे ठीक ठाक नहीं है तो आपको कॉल कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो रिज्यूमे ठीक ठाक कैसे करना है, दिस आई हैव टोल्ड यू अबाउट, ठीक है। नाउ क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। लिंक्डइन में कुछ लिखो, ब्लॉग लिखो, कोरा में कुछ ब्लॉग लिखो, या न्यूज लेटर्स लिखो, है ना। जो जो अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज में काम करे, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट हूँ, या कोई सोचो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट है, या कोई सेल्स में है, वैसे वैसे बंदों से बात करो, ठीक है। उनसे पूछो कि क्या करूं मैं जिससे मेरे को आपको जैसे मिला मेरे को भी मिले, और आपके थ्रू मुझे कैसा मिले। अगर नेटवर्क आप करोगे, नेटवर्क इज योर नेटवर्क, मतलब आज के दिन में कंपटीशन नहीं है, कोलाबोरेशन है। अगर आप किसी के साथ वो करोगे, कोलैब करोगे, तो वो भी आपको हेल्प करेंगे जॉब को लैंड करने में। नाउ द लास्ट एंड द बेस्ट पार्ट, आप इसका अगेन एक स्नैपशॉट ले सकते हो। These are the books that have changed my life. I have read almost 35 to 40 odd books, but these are the books which I love the most. और starting के लिए these are some of the books मेरे को लगता है कि it will change. And there are psychological books. So आपको अगर पूरा डीप फाइनेंस नहीं पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो 0 to 1, या आप पढ़ सकते हो माइंडसेट, या आप पढ़ सकते हो द डीप वर्क, आप पढ़ सकते हो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या द एल्केमिस्ट।
तो these are some of the books which could be life changing, है ना? So that's it. That's a wrap, right? That is the end of the session. And yeah. Yeah, hi Gaurav. So thank you so much for that session, right? So we'll have the next part open to any questions that come from the audience. अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं, अगर किसी भी स्टेप जो गौरव ने बताया उसके बारे में अगर कुछ जानना है, तो आप एक बार अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं. आप चाहे तो एक बार चैट में भी पूछ सकते हैं. हेजिटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसे भी क्वेश्चंस हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपकी क्वेश्चंस हो, आप भी झिझक यहाँ पे पूछ सकते हैं. Anyone who wants to ask any questions regarding anything related to a career in finance, anything that was discussed on the session? आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, या तो आप चैट में भी डाल सकते हैं. Okay. Let's wait just one more minute and then maybe we can call it a wrap. Yeah. Gaurav, anything that you wish to add from your side, like a final word of advice for all the people here, Yes. something that they can do? Yes. Yeah. Yes. So मेरे को फाइनल वर्ड्स यही बोलना है कि जब हम मतलब छोटे थे या वेयर वी आर, हम ना हमेशा कोई ना कोई हमको कंपेयर करता था कि कंपटीशन है, उसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया, है ना? अगर तुम भी नहीं करोगे तो ऐसे तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ऐसा मतलब दिस इज वेरी झूठ, लाइक दिस इज टोटल लाई. ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके बस वो मतलब ड्राइव होनी चाहिए, इंटेंट होनी चाहिए. पहले तो आप सोचते हो, ठीक है, मुझे करना क्या है, आपको थॉट्स आती है, फिर वो थॉट्स ना आपको रिपीट होती रहती है. जब वो थॉट्स आपको रिपीट होंगी ना, इट बिकम्स अ बिलीफ. आपको बिलीफ हो जाएगा. जैसे मेरे को फाइनेंस में आना है, जैसे रिपीटेडली मुझे थॉट्स आ रहा है कि मुझे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च एनालिस्ट बनना है, तो दैट थॉट बिकम्स बिलीफ. जब आप बिलीव करना चालू करोगे ना, यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. अच्छा, मेरे को बनना है तो मैं ये करूंगा, मैं ये जाके करूंगा. यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, यू गेट रिजल्ट्स, है ना? यू गेट रिजल्ट्स. ट्रस्ट मी गाइस, like the firm I am working with right now and the people I am meeting, I have never, मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और इतने कम समय में होगा. बट वन थिंग मेरे को लाइक ये मेरे को रियलाइज हुआ कि ये जो होल यूनिवर्स है वो आपको मतलब वो सिर्फ चाहती है आप बोलो उसको आपको करना क्या है, और आपका ड्राइव इतना होना चाहिए कि अगर आप उसको ना हर दिन सोचोगे, हर दिन किसी पेपर पे लिखोगे कि मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ पे जाना है और इतने साल में जाना है या इसमें जाना है और मुझे ये करना है, अगर आप रिपीटेडली वो करोगे ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो यूनिवर्स को आता है. एंड ट्रस्ट मी, आप जितना भी एफर्ट कर लो, ऑटोमेटिकली ना आपके आसपास चीजें चेंज होती रहती है ना? तो कभी अपने को कम मत समझो, कभी अपने को डालो ही मत कंपटीशन में. बोलो कि मैं अकेला बंदा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, मैं कैसा हूँ, पहले खुद को देखो कि मैं कैसा हूँ. अगर मैं सही हूँ ना, दुनिया सही है. अगर मैं सही नहीं हूँ, दुनिया कभी सही नहीं होगी और तुमको सब बुरे ही लगेंगे, है ना? तो मेरा वर्ड ऑफ एडवाइस है कि तुमको बहुत इंटेलिजेंट या जीनियस नहीं होना लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. तुमको दूसरे लोगों से ज्यादा कोशिश करना है. अगर तुम कोशिश करोगे और बोलोगे अच्छा मैंने 4 लाइन पढ़ा, ये मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन मैं 40 टाइम पढ़ूंगा इस 4 लाइन्स को, जब तक मेरे को समझ में नहीं आया मैं इसको छोड़ूंगा नहीं. अगर आप लोगों में ऐसे एटीट्यूड आ गया ना, और मैंने जो जो चीजें बोला अगर आप लोगों ने थोड़ा सा उसको फॉलो भी किया, आई एम श्योर कि नेक्स्ट 6 to 7 months आप सबको बहुत सारे मतलब रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अपने आप पे दिखेंगे, है ना? एंड मेरे को मतलब इट इज अ अपॉर्चुनिटी कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, और दीपांशु को भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उसने मुझे ये मतलब ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आज आके आपके शेयर कर सकूं. अगर मेरे शेयर करने से आपका लाइफ अच्छा हो, आपको जो करना है वो आप कर सकोगे, तो इट इज अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी, है ना? तो दैट इज इट. Yeah. आई विश यू ऑल द बेस्ट, है ना? Yeah. Thank you so much, Gaurav. Thank you. So I think we'll move on to the conclusion of this session. Just adding a few things for everyone here. Firstly, a huge thanks to Gaurav to come on this session here and share his experience with us. We definitely got a lot to learn, especially to understand how we can build a career in finance, what steps we should take, what skill sets are necessary, and what approach is ideal, irrespective of where we stand currently in our daily lives and what our goals are.
A few quick things that I want to highlight that, I've left the links to Gaurav's in LinkedIn profile. I've left links to the profiles of Gaurav's community on Apna and also the finance dedicated community that we have. So if you have interest and want to learn more about this industry, want to build a career here, do follow content here, try to network with people, connect with them, ask them for referrals, find out what career opportunities are there. This will definitely help you. As Gaurav mentioned, right? You put in the efforts, you have the drive, and you'll definitely reach there. Utilize these resources, connect with Gaurav, understand if you need a one-on-one session with him, have any doubt clearances, do get in touch with him. Last but not the least, thank you so much everyone for joining this call and making this a successful session. A great pleasure of mine to host you all and see that there's so many people here interested and want to know more. That's all that I have to say for myself. Thank you, Gaurav, once again, and yeah, we'll call it a day. Have a good day, everyone. Yeah. Yeah. Bye.